Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Welcome to the Sunday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on mutual funds and related matters. You can call us on 2331 4444, 2342 1050 and 2331 0464. I am Vaibhav Jyotsna Srivastava, and with me is my co-anchor in Hindi, Subodh Mishra. धन्यवाद वैभव और नमस्कार श्रोताओं। कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फ़ोन कर सकते हैं 23314444, 23421050 और 23310464। दिल्ली से बाहर के और मोबाइल से फ़ोन करने वाले श्रोता इससे पहले STD कोड 011 डायल करें। आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट स्नेहा सूरी। स्नेहा, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। पहले हेडलाइंस के साथ वैभव। Prime Minister Narendra Modi says public participation is the real strength of India, urges everyone to accord priority to indigenous products. Foreign investors pump in nearly 14,000 crore rupees into the Indian equity market so far in May, and domestic markets to focus on corporate earnings, GDP data from India and US, and global markets for Qs next week. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जन भागीदारी भारत की असली ताकत है। स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देने का भी अनुरोध किया। विदेशी निवेशकों ने मई में अब तक भारत के शेयर बाजारों में लगभग 14,000 करोड़ रुपए का निवेश किया और अगले सप्ताह देश के बाजारों का फोकस रहेगा कंपनियों की आमदनी, भारत और अमेरिका के GDP के आंकड़ों और वैश्विक बाजार के संकेतों पर। Starting with the first headline, Prime Minister Narendra Modi today stated that he found it heart-touching that parents have pledged to buy only made-in-India toys for their children. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashvani, Mr. Modi said some families have taken the pledge to spend their vacations in the country. Many young people have resolved to wed in India and give gifts made by Indian artisans. Mr. Modi highlighted that this public participation is the real strength of India. He urged everyone to accord priority to products made in the country. He opined that this is not just a matter of economic self-reliance, but participation in the process of nation building. He said about a decade ago, honey production in India was around 70 to 75,000 metric tons a year. Mr. Modi expressed happiness that today it has gone up to around 1.25 lakh metric tons, making India one of the leading countries in the world in honey production and export. Prime Minister gave the example of Korea district of Chhattisgarh, where tribal farmers have created a pure organic honey brand named Son Honey. This honey is being sold on many online portals, including GEM. Mr. Modi said the hard work of the village is now going global. He also said that thousands of women and youth in UP, Gujarat, Jammu and Kashmir, West Bengal, and Arunachal Pradesh have become honey entrepreneurs. He noted that some startups are now certifying the quality of honey with AI and digital technology. He urged people to try the honey made by these honey entrepreneurs. चलिए, कॉलर्स कुछ इंतजार कर रहे हैं। वैभव, सहारनपुर से विवेक हमारे साथ है। विवेक, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। नमस्कार। मेरा प्रश्न, मेरे पास एक लमसम अमाउंट है, मैं इसे 2 से 3 महीने के लिए डेब्ट फंड में निवेश करना चाहता हूँ। क्या मुझे ये अमाउंट एक साथ निवेश करनी चाहिए या इसे स्प्लिट कर लगाना चाहिए? कुछ अच्छे फंड की गाइड करें। जी विवेक जी, आपने मेंशन करा आपके पास एक लमसम है, आप जिसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं 2-3 महीने के लिए डेट फंड में। अब यहाँ पे मैं ये मान रही हूँ कि आप इसको डेट फंड में अभी इन्वेस्ट करके आगे इन्वेस्ट करना चाहते हैं या आप इसको डेट फंड में ही रखना चाहते हैं। तो अज्यूमिंग कि आप आगे चल के इसको तोड़ के इन्वेस्ट करना चाहते हैं,
जो कि मैं आपका प्रश्न ऐसे समझ पा रही हूँ, तो बिल्कुल आप लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और वहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए आप जो आपकी लमसम राशि है आप उसको पूरा का पूरा अपने बैंक अकाउंट से डायरेक्टली 2-3 लिक्विड फंड में आपको सजेस्ट कर सकती हूँ। बट अगर आपकी राशि बहुत बड़ी नहीं है तो आप एक ही लिक्विड फंड में डाल सकते हैं। 1-2 नाम देने हो तो एक्सिस का लिक्विड फंड, HDFC का लिक्विड फंड, ICICI प्रूडेंशियल का लिक्विड फंड, ये अच्छे फंड है और अपना काम बेहतर तरीके से करते हैं। अब आगे जाकर आप इसको तोड़ तोड़ के इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो वो आपने मेंशन नहीं करा है, आप कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहेंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहेंगे, मान लीजिए 5 साल तक के लिए, तो आप अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स चुन सकते हैं जो आपका कुछ 60 से 80% पैसा इक्विटी में लगाते हैं और थोड़ा सा पैसा डेट फंड्स में लगाते हैं, डेट एलोकेशन में लगाते हैं। तो 1-2 नाम मैं आपको वहाँ भी बता दूं अगर, तो आप जैसे अगर ICICI लिक्विड फंड में अपना लमसम डालते हैं, वहाँ से आप STP के माध्यम से ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड जो एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड है वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट इसके अलावा कुछ अच्छे ऑप्शन इन कैटेगरी में है कोटक का इक्विटी हाइब्रिड फंड, DSB का अग्रेसिव हाइब्रिड फंड। दिस शुड हेल्प यू इन द लॉन्ग टर्म फॉर योर गोल्स। And we have Pradeep calling in from Delhi. Welcome to the show. Please ask your question. नमस्कार मार्केट मंत्रा टीम, प्रदीप बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी नमस्कार। जी मुझे सर एक ये बता दीजिए, कोई स्मॉल कैप बता दीजिए अच्छा, जिसमें मैं बीच बीच में लमसम अमाउंट भी डाल सकूँ। और दूसरा मुझे बता दीजिए कि जो कोटक का गिलिट फंड है, मुझे शॉर्ट टर्म के लिए 2 लाख रुपए लगाने हैं उसको 3 महीने के लिए, तो वो फंड कैसा है सर, वो भी प्लीज बता दीजिए सर। जी तो प्रदीप जी, जो आपने पहले बताया कि मैं आपको कुछ 1-2 स्मॉल कैप फंड्स के नाम बता दूं, मेरी एक राय ये रहेगी, 2 आपने अपना मन बना लिया है कि आप इसमें बीच बीच में अपने आप डालना चाहेंगे लमसम, बट ज़्यादा बेहतर ये रहता है कि जिस टाइप के उतार चढ़ाव स्मॉल कैप आपको आपके पैसे को करवा सकते हैं, उससे ना डरने के लिए ज़्यादा बेहतर रहता है कि हम तोड़ तोड़ के अपनी जो इतनी मेहनत से कमाई हुई राशि है उसको इन्वेस्ट करें। तो SIP का माध्यम मैं आपको सजेस्ट करूंगी इन्वेस्ट करने के लिए। और दूसरा मेरा सजेशन बिफोर आई कम टू द नेम ऑफ द फंड्स वुड बी द टाइम होराइजन आप जिसके लिए इसको इन्वेस्ट करके रखें, वो कम से कम 7 साल रहना चाहिए। मतलब 5 साल से तो ज़्यादा रहना ही चाहिए, नहीं तो एक जो स्मॉल कैप आपको जिस तरीके का रिटर्न दे सकता है ना, वो शायद से आपका मिस आउट हो जाए। तो जब उतार चढ़ाव बीच में आते रहेंगे, आप बस अपनी SIP जारी रखिए। 2-3 फंड्स में अगर आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पर आप SBI स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप जैसे फंड्स देख सकते हैं। जो आपका दूसरा क्वेश्चन था रिगार्डिंग कोटक गिल्ट फंड, अगर मैं समझ सही पा रही हूँ तो जो गिल्ट फंड टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है वो बेसिकली जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं लंबे समय की, उनमें अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो सेफ्टी के माध्यम में यहाँ कुछ कमी नहीं रहती है, कोई रिस्क नहीं रहता है। पर जो एक रिस्क यहाँ पे रहता है वो इंटरेस्ट रेट रिस्क का रहता है, क्योंकि जो लंबे समय की सिक्योरिटीज होती हैं उनमें जब RBI रेट का कुछ भी डायरेक्शन चेंज करती है तो उसका चाहे पॉजिटिव इम्पैक्ट हो चाहे नेगेटिव इम्पैक्ट हो, वो इस टाइप के फंड में ज़्यादा होता है। अब क्योंकि आजकल में जो इंटरेस्ट रेट की ट्रैजेक्टरी चल रही है वो डाउन साइड चल रही है, तो जब रेट कट हो रहा होता है तब ये जो लंबे समय में सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं उनको बेनिफिट ज़्यादा होता है। तो ये जो फंड है ये उस हिसाब से सेफ है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस ये आपका जो भी पोर्टफोलियो है उसका बहुत बड़ा एलोकेशन नहीं होना चाहिए। आप 5 से 10% इसको एज अ सप्लीमेंट्री एलोकेशन टू योर डेट पोर्टफोलियो रख सकते हैं। तो जी हाँ, ये फंड में कुछ ऐसी कमी नहीं है। जी अगले कॉलर हैं दिल्ली से सुनील, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। नमस्कार जी, थैंक यू वेरी मच मुझे ऐड करने के लिए। मुझे बस आपसे ये जानना है, जैसे मेरे पास एक 10 लाख रुपए की रकम है, तो मैं हाई रिटर्न चाहता हूँ। अगर थोड़ा रिस्क भी रहेगा, ज्यादा रिस्क भी होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं रेगुलर उसको ट्रैक नहीं करना चाहता, मतलब उतना टाइम नहीं है और ना मैं उतनी एनर्जी लगा सकता हूँ इसमें, मुझे समझ नहीं है इन चीजों की। तो कौन से फंड रहें जिसमें मैं हाई रिटर्न ले सकता हूँ? और कितने समय के लिए निवेश करना चाहते हैं? 3 साल प्लस इज ओके फॉर मी। 3 साल और बहुत सारा पैसा वापस भी चाहिए। तो जो आपने बोला कि आप हाई रिटर्न चाह रहे हैं, तो मैं पहले आपको बताना चाहूंगी कि जो 3 साल का एक टाइम पीरियड होता है उसमें अगर तो मार्केट कुछ बेहतरीन कर दिखाती है जिसकी वजह से आपका रिटर्न जूम कर जाए, तो ये बहुत ही वन ऑफ काइंड ऑफ इंस्टेंसेस होते हैं जो हमें कुछ पिछले टाइम में दिखे हैं
हो सकता है कि आपका क्वेश्चन भी इसी वजह से आ रहा होगा, बट जो एक मार्केट की हिस्ट्री देखी गई है उसमें ये देखा गया है कि शॉर्ट टर्मिज्म वर्क नहीं कर पाता। आपको थोड़े लंबे समय के लिए अपना पैसा धीरे धीरे करके लगाना ही पड़ता है ताकि मार्केट के डायनामिक्स आपको वो रिटर्न दे पाएं। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है कि कंपाउंडिंग आपके लिए वर्क कर पाए। तो जब आप धीरे धीरे करके इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, जो पहले के कुछ 1, 2, 3 साल होते हैं उनमें क्योंकि आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट ही इतना कम होता है, तो जो आपको उस पर रिटर्न मिल रहा होता है, फिर रिटर्न पे रिटर्न मिल रहा होता है, जिसे हम कंपाउंडिंग कहते हैं, उसका इफेक्ट स्टार्टिंग में पता ही नहीं चलता है। उसका जो एक ब्यूटीफुल नेचर होता है वो तब पता चलता है जब आप धीरे धीरे करके एक सफिशिएंट अमाउंट जमा कर लेते हैं और फिर उस पर जब आपको एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा होता है। तो मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ ताकि आप अपना, क्योंकि 10 लाख का अमाउंट काफ़ी बड़ा है, अगर आप अपना होराइजन 5 साल तक ले जाएं एटलीस्ट, तो ज़्यादा बेहतर रिटर्न जो आप कह रहे हैं थोड़े रिस्क के साथ वो आप अचीव कर पाएंगे। एंड अज्यूमिंग कि आप ऐसा कर पाएंगे तो आप और अगर आपके पास पहले कभी कुछ एक्सपीरियंस नहीं रहा है, क्योंकि आप कह रहे हैं आपके पास नॉलेज उतनी नहीं है या आप ट्रैक उतना नहीं कर पाते, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उतना शायद अभी आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो फॉर स्टार्टिंग आपको SIP हाइब्रिड टाइप के फंड्स में करनी चाहिए। जैसे मैं अभी एक पहले यूजर को बता रही थी कि ICICI प्रू इक्विटी एंड डेट, DSP अग्रेसिव हाइब्रिड, कोटक इक्विटी हाइब्रिड, ऐसे 2-3 फंड्स में आप धीरे धीरे करके अगर अपना पैसा लगाते हैं, आप 2-3 साल करते हैं और आपको एक्सपीरियंस हो जाता है मार्केट के उतार चढ़ाव का। आप खुद देखते हैं जब मनी, आपका हार्ड अर्न मनी गिर रहा होता है, बढ़ रहा होता है, जो कि अभी सिर्फ नोशनल है, आपका कोई लॉस या गेन यहाँ परमानेंट नहीं हुआ है। उसके बाद आप ऑल इक्विटी फंड जैसे पराग पारिक, फ्लेक्सी कैप, उनमें थोड़ा सा अपना रिस्क बढ़ाकर जा सकते हैं। बट हमेशा एक एसेट एलोकेशन रखना चाहिए कि आप कुछ पैसा इक्विटी में रख रहे हैं और कुछ अपना डेट में रख रहे हैं। और डेट आपका FD भी हो सकता है अगर आप हमेशा से वो करते आए थे और आप म्यूचुअल फंड एरेना में न्यू हैं तो ये कुछ प्रिंसिपल्स पे अगर आप चलेंगे तो 5 साल की अवधि में आपका ये जो 10 लाख वाली राशि है ये और बढ़ जाएगी। We have NR Prasad calling from Bengaluru. Welcome to the show, sir. Please ask your question. Good evening, Mutual Fund Market Mantra. This is NR Prasad from Bangalore. Snehaji, I have 2 questions. Yeah. I need the answer only in English. Okay. So my first question is, there are about 6 to 8, I've already invested in mutual funds. Some of them are hybrid, some of them are equity linked. How to find out what is the share of these equity based or hybrid based? How to find out from the system? Is there any mechanism going to the website of that company and find out how is that? My second question is, when Yes, we please switch carry on. over from the mutual fund within the same company, whether brokerage is to be paid or to be deducted automatically from the system? Thank you. These are my 2 questions. Right. So taking your first question first, I'm presuming you're wanting to know what kind of allocation you have from your equity and hybrid funds across, let's say, different asset classes, be it equity or debt, or if your hybrid funds are taking some allocation to gold or REITs per se. So one particular portal that I can suggest, because that is the one I use, is the Value Research online website, where you can directly fetch your entire portfolio from MF Central and import that into Value Research online My Investment Tracker, where in one particular view you can look at how your asset allocation pans out basis the funds that you are invested in. Now, your second question was not that clear to me. If I'm understanding correctly, you are wanting to know if any kind of brokerage is deducted when you invest directly into the AMC. If I'm understanding that correctly, so all the kind of expenses when you invest in a direct plan directly from the AMC are already built into the NAV. Just that this expense or any kind of cost, let's say, I'm not sure if we can call it brokerage, but administrative costs or operational costs to run that, or management costs to run that particular fund increases when you invest in a regular fund versus a direct plan. So if you're going for a direct plan, then there is no brokerage per se that is being deducted separately.
जी, अगले कॉलर हैं दिल्ली से योगेश। स्वागत है आपका, सवाल पूछें। जी शुक्रिया। मेरा सवाल ये है कि मैं काफ़ी सालों से म्यूचुअल फंड में निवेश करता हुआ आ रहा हूँ और मेरा जो कोर पोर्टफोलियो है वो बिल्कुल एसआईपी के माध्यम से ही बना है। सवाल मेरा ये है कि अक्सर हमने ये देखा है कि मार्केट में अगर हमारे पास एक बड़ा अमाउंट है तो जाहिर है कि अक्सर हमने ये सुना है, धीरेन्द्र सर से भी सुना है कि एसटीपी के थ्रू मार्केट में पैसा डालना चाहिए एक अवधि के हिसाब से। लेकिन मार्केट की वैल्यूएशंस को, क्योंकि हमने आधा पैसा एसटीपी में लगा दिया है, बट कुछ हम अपॉर्चुनिस्टिक बाइंग के लिए रखना चाहते हैं, तो मार्केट का ओवरऑल वैल्यूएशन का आकलन कैसे किया जाए? क्या इंडेक्स का पीई देखा जाए, वो कितना होना चाहिए एवरेज पीई इंडेक्स का जो जस्टिफाइड है, और कैसे एक वैल्यू इन्वेस्टर मार्केट का आकलन करता है वैल्यूएशंस का? जी योगेश जी, पहले तो मैं आपको मुबारक देना चाहूँगी कि आप इतने टाइम से इन्वेस्ट कर रहे हैं और एसआईपी के माध्यम से कर रहे हैं, तो आप उसका बेनिफिट भी रीप कर रहे होंगे जैसे जैसे आपका टाइम और इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ रहा होगा। जो आपने पॉइंट रेस करा कि अगर आप एसटीपी के माध्यम से धीरे धीरे करते हैं बट कुछ आप अपॉर्चुनिस्टिक बाइंग करना चाहेंगे, तो ये अच्छी बात है कि आप ये समझते हैं कि कुछ पैसा कोर होना चाहिए और वो एसटीपी के माध्यम से करना चाहिए, और अपॉर्चुनिस्टिक के लिए आपको अपना सारा एलोकेशन नहीं, थोड़ा सा ही एलोकेशन निकाल के रखना चाहिए। अब एज अ वैल्यू इन्वेस्टर अगर आप वैल्यूएशंस पर से देखना चाह रहे हैं तो आपने जैसे मेंशन करा, आप बिल्कुल जो इंडेक्स फंड्स होते हैं उनके पीईस को ले सकते हैं, या फिर जो इंडाइसेस एग्जिस्ट करते हैं जैसे सेंसेक्स, निफ्टी 50, इनके पीई को देखकर और हिस्टोरिकल ट्रेंड्स को देख के एक अंदाज़ा ज़रूर लगाया जा सकता है कि ये कैसे ट्रेंड कर रहे हैं, कैसा जा सकता है। वो बस एक इसको अब मैं कह सकती हूँ, ये बस एक आपके मतलब ये सर्टेनिटी से नहीं कह सकता, आप उन नंबर्स को देखकर ये अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं, बट मेरे हिसाब से अंदाजे पे आप अपने मनी को रिस्क पे नहीं डाल सकते हैं टिल द टाइम यू एक्चुअली बिलीव इन अ पर्टिकुलर आइडिया। लेट्स से अगर कोई वैल्यू स्टॉक है जो आपको लग रहा है काफ़ी अंडर वैल्यूड है, जब आप उसका पीई देखते हैं वर्सेस लेट्स से एनी इंडेक्स, अगर आपको लगता है कि वो कंपनी आगे जाके बढ़ेगी और वो कंपनी इतनी बढ़ जाएगी कि जो प्राइस अभी आप जिस पे खरीद रहे हैं उससे दुगना तिगना हो जाएगा, तो बिल्कुल ऐसे स्टॉक्स रहे हैं, हिस्ट्री में भी देखा गया है कि ऐसा हुआ है। बट इन नंबर्स को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप अपने जानकारी के लिए ऐसे शोज़ जहाँ पर अभी हम हैं या फिर न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स वगैरह पढ़ के समझ के अपनी एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे वो एक अंदाज़ा ही हो जाता है। तो इफ़ यू स्टिल बिलीव इन द ग्रोथ ऑफ लेट्स से अ पर्टिकुलर स्टॉक बेसिस ऑल ऑफ दीज काइंड ऑफ नंबर्स, तो आप डेफिनेटली अपने अपॉर्चुनिस्टिक बाइंग वहाँ कर सकते हैं। बट वो सर्टेनिटी से करते कैसे हैं ये मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे नहीं पता है। We have Pankaj calling in from Kolkata. Welcome to the show. Please ask your question. हेलो जी पंकज जी। जी मेरा एक प्रश्न है कि मैंने करीब 6 महीना पहले एसबीआई हाइब्रिड फंड में एसआईपी स्टार्ट किया है। करीब 6-7 सालों के लिए मुझे एसआईपी चलाना है, तो ये जो एसबीआई हाइब्रिड फंड जो मैंने चुना है, तो क्या इसका ये चुनाव सही है अगले 5-6-7 सालों के लिए, या किसी और दूसरे फंड में हमें शिफ्ट होना चाहिए? तो पंकज जी, आपने जिस फंड का चुनाव करा है एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड, वो बिल्कुल एक सही फंड है। वो एक्चुअली अपनी कैटेगरी का काफ़ी बड़ा फंड है। पिछले कुछ टाइम में उसकी परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट पड़ा था, बट वो इम्पैक्ट इसलिए नहीं था क्योंकि उसका पोर्टफोलियो उतना बढ़िया नहीं था। वो इसलिए था कि जिस टाइप का पोर्टफोलियो उसने बनाया हुआ था उस टाइम पे वो वाली मार्केट उसको फेवर नहीं कर रही थी। बट वो फंड धीरे धीरे कम बैक कर रहे हैं, और एक्चुअली अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो अपनी कैटेगरी में एटलीस्ट लास्ट 1 ईयर में उसने 13% रिटर्न दिया है, जो कि उसको टॉप 5 में प्लेस करता है इन कैटेगरी जहाँ पे कुछ 40 फंड है। तो आपका चुनाव बिल्कुल सही है। जी, अगले कॉलर हैं गाजियाबाद से अमित। स्वागत है अमित, सवाल पूछें। या हाय, गुड इवनिंग मार्केट मक्का। गुड इवनिंग। तो मैडम, माय क्वेश्चन इज कि लाइक आई हैव अ lump sum amount of rupees around 5 lakhs. So I'm looking to invest in the equity fund via the STP process. Okay. So I have shortlisted, like as per your, after your, I have heard your conversation, and I have shortlisted 2 funds. Like one is ICICI hybrid fund, which is equity and debt, and second one is the Parag Parikh Flexi Cap fund. So how can I do? Do I need to do a STP for one fund, or I can do STP for both the funds?
So if both the funds, then how can I do the STP via from the depth fund of both the AMCs? And is this my approach is correct, or I can do much better? Or this is my question. Yeah. So Amit, the choice of funds is absolutely fine, and actually you will have to run STPs separately from both of these AMCs. Let's say liquid fund, so ICICI Pru liquid fund to do STP in ICICI Prudential Equity and Debt, or aggressive hybrid as it has been named, and Parag Parikh liquid fund to do STP into Parag Parikh Flexi Cap, because that is how the process is. So you can log into, let's say, ICICI Prudential website and Parag Parikh website separately, do STPs in their respective liquid funds, and from there instruct the AMC that you want to slowly do an STP and invest this particular amount for this particular frequency into their respective aggressive hybrid and Flexi Cap fund, and that should be done. Ms. Suri, if we are transferring the money through STPs from one fund to another, and I believe this was also the question of one of our listeners, do we have to pay anything extra to the companies or the AMCs while we are doing so? No, not really. It is simply a method that they are providing you as an investor, same as SIP. SIP is happening from your, let's say, savings bank account to the particular fund. Here, the money goes first from your savings bank account to one fund, and then it goes to another fund. But one thing that I would like to mention here is that any kind of STP from this fund to that fund would be accounted as a redemption from one fund and into the another. So it will incur some amount of tax? जी LTCG जो भी टैक्स उस पर बनता है वो देना पड़ेगा. अगले कॉलर हैं कोलकाता से तापस. स्वागत है तापस, सवाल पूछें. Yeah, sir. Good evening, sir. Good evening. SBI Automatic Opportunity Fund. मैंने ये जून 2024 में इन्वेस्ट किया, लेकिन अभी तक वो 2000 लॉस में है. इसको क्या कंटिन्यू करूँ ना, ये क्या करूँ इसको? तापस जी, क्या आप अपने फंड का नाम एक बार फिर से बता सकते हैं? SBI Automatic Opportunity Fund. SBI Automatic Opportunity Fund. जी, सो आपने जैसे मेंशन करा कि ये फंड अभी आप कह रहे हैं लॉस में है. एक्चुअली ये फंड अभी बहुत ही नया है, इसको कुछ 11 महीने ही हुए हैं, तो हम अभी कह नहीं सकते कि ये फंड अच्छा करेगा या नहीं करेगा. जस्ट दैट अभी की मार्केट में ये अच्छा नहीं कर रहा है, बट क्योंकि आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं एंड अज्यूमिंग ये आपका पूरे पोर्टफोलियो का बहुत छोटा अमाउंट है, तो आप इसको एज इट इज़ रहने दीजिए. अब आपने उसमें डाल दिया है तो आप रिडीम ना ही करिए तो बेहतर रहेगा. आप थोड़े टाइम इसमें और बने रहिए. हाँ, बस ये कर सकते हैं कि आप इंक्रीमेंटल मनी ना डालिए. And we have Dave calling in from Delhi. Dave, welcome to the show. Please ask your question. Dave? देव जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो जी, अपना सवाल पूछिए प्लीज. नमस्कार जी. हम ये म्यूचुअल मार्केट में जाने के लिए हम नए कस्टमर हैं, तो नए कस्टमर के लिए जैसे हमने बैंक के थ्रू जाने की कोशिश करी, बैंक में जानकारी ली, तो प्राइवेट बैंक का उसमें बोला हाँ इसमें एक बास्केट होता है. तो ये कहीं ऐसी सुविधा है जहाँ इसके लिए जानकारी मिले, ठीक स्टेप बाय स्टेप हम म्यूचुअल फंड में एंट्री कर पाए और सुविधा से आपके म्यूचुअल फंड में हम अपना लाभ उठा पाए? I believe Dave is trying to say that he's a new entrant to the mutual fund arena. He had gone to his bank and he was trying to get some information. So what is the right procedure for such new investors through market monitoring? वैसे चाहे तो आप बहुत सारे ऐप्स हैं जिनके थ्रू आप कर सकते हैं, और वैसे सारे ऐप्स जो हैं प्राइवेट जो भी दिखते हैं उनमें अब थोड़ा थोड़ा कहीं पर कुछ शुल्क लगाने की कोशिश कर रहे हैं वो. तो आप MF सेंट्रल की मदद ले सकते हैं जो फ्री है. आप MF सेंट्रल की मदद ले सकते हैं जहां से आपका इन्वेस्टमेंट करना भी पॉसिबल है और आप उसको ट्रैक भी रख सकते हैं. बट मैं ये मेंशन करना चाहूँगी कि आप पहले खुद से समझिएगा कि आप कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, लंबे समय के लिए, छोटे समय के लिए, किस टाइप की एलोकेशन रखना चाह रहे हैं, और ये सब समझ के फिर आप अपने फंड की चुनाव कर सकते हैं. और जानकारी के लिए कि कहाँ से समझे, कैसे करें, तो आजकल ऑनलाइन ये वाली नॉलेज काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है. आप
न्यूज़ डेलीज को भी रेफर कर सकते हैं जहाँ पे इस सब के बारे में जानकारी आती है। जी, हैदराबाद से हैं अगले कॉलर सौरभ। सौरभ, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। Good evening, Market Mantra. गुड इवनिंग। Nowadays, I am from the Market Mantra program only. We are hearing about this multi-asset fund. So I want to know from the expert a few such funds. Thank you. So, multi-asset allocation funds are actually the one which are mandated to invest at least some amount in at least three kind of asset classes, and generally these happen to be equity, debt, as well as gold. So if you look at it from a portfolio perspective, it gets you all of these three exposures in just one particular fund form, and you don't really have to have separate allocations. But the issue with multi-asset allocation as a category is that every kind of fund has a different kind of allocation to offer to you. So the arena that you are entering into is actually a very unpredictable one. And for most investors, a predictable or a static asset allocation is the one that is most suitable, simply because you know what kind of risk return outcomes you can get from a particular fund, because after all, it's your hard-earned money which is being invested. But that said, multi-asset allocation funds can be looked at precisely if you know what kind of allocations the fund is running in the one that you are investing. Separately, you should also reflect upon what the taxation is there of that particular multi-asset allocation fund. So as of now, I have not done that kind of research to offer you names, because as per my research, all of these offer very different kind of risk return outcomes. So that would be up to you to decide. अगले कॉलर हैं बिहार से टिंकू राय। स्वागत है आपका, सवाल पूछें। नमस्ते सर। नमस्कार जी, सवाल पूछें अपना। नमस्ते सर। जी, आपकी आवाज आ रही है टिंकू जी, सवाल पूछिए। सर मेरा दो सवाल है जी। एक, मैं सहारा इंडिया में सर एफडी कर रखे हैं, वो मिलेगा या ना मिलेगा इसके बारे में जानकारी, और एक मैं इको बैंक में मेरा अकाउंट है सर, उसमें जो म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना चाहते हैं तो वो कहता है इसमें कोई एसआईपी नहीं होगा, इसीलिए थोड़ा जानकारी चाहिए कि ये किस बैंक से किया जाए, एसआईपी किया जाए म्यूचुअल फंड में। हमें म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी नहीं है, शेयर मार्केट के बारे में, यही सर जानकारी चाहिए जी। अब सहारा के बारे में तो हम कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करा पाएंगे, क्योंकि विवादास्पद है, शायद आई थिंक कुछ कोर्ट में भी होगा मसला। और जो ये बोल रहे हैं कि किसी बैंक में है वहाँ से एसआईपी नहीं हो सकता है, तो आप वैसे तो किसी भी सरकारी या गैर सरकारी बैंक में जाएंगे तो अगर बचत खाता है आपके पास तो उसके थ्रू आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं, और एसआईपी बैंक वाला नहीं करेगा, म्यूचुअल फंड वाला करेगा जी। बट कभी कभार जैसे हम बैंक्स में भी जब जाते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो अपने फंड्स हमें बता सकते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, बट इस पर्टिकुलर बैंक के पास नहीं होगा। बट एसबीआई, आईसीआईसीआई ऐसे बैंक को अप्रोच किया जा सकता है, पर पहले जानकारी ले लेनी चाहिए म्यूचुअल फंड्स के बारे में जी। और इस महीने अब तक विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में लगभग 14,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार उन्होंने इस महीने अब तक भारतीय शेयरों में 13,835 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जबकि ऋण बाजार से 7,743 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। And gold prices registered their best weekly gain in 1.5 months as investors sought the safe haven asset amid renewed tariff threats from US President Donald Trump and a week earlier. And domestic markets will monitor key triggers like last set of March quarter earnings, domestic economic data, FII inflows, and global markets for Qs next week. This week, the IPO market will also witness action with several offerings and listings stated across the main board and SME segments. स्नेहा, मार्केट मंत्र में आने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। And before we close, a reminder of the headlines. Prime Minister Narendra Modi says public participation is the real strength of India, urges everyone to accord priority to indigenous products. Foreign investors pump in nearly 14,000 crore rupees into the Indian equity market so far in May, and domestic markets to focus on corporate earnings, GDP data from India and US, and global markets for Qs next week. And that's it in this edition of Market Mantra. Namaskar. Namaskar. Market Mantra.